Good evening, gentlemen. We have been awaiting for these days for quite a long time. Mr. Nawang is here, President CII Leh. I have been requesting him to have a media interaction in Leh so that we can have a across the table discussion and whatever issue that is happening, whatever is boiling and coming up in the project execution that need to be discussed, and so that we also learn from you, and we also would like to tell you something more about the project. It is a new project in the country, first time being undertaken. So there are many misconceptions has been there, what we perceive. So a lot of misconception is prevailing. So we like to clarify all those things. We welcome all your questions. We certainly take all your questions in a constructive way, so that how we can improve the project in the best interest for all stakeholders. We have been waiting. 2 decades have passed. Let me tell you, 50 years have passed since the field has been discovered. Dr. Absar is here with us. He is a veteran of geothermal. In 70s and 80s, he has camped in Puga for 3 years. Let me tell you, 3 years in Puga exploring this geothermal field. We are lucky to have him with us today. From Iceland, ISOR, they are our consultant. They will be joining through VC conference. Our DG is here, Mr. Ravi. He is a veteran of project execution in ONGC. He has recently joined Energy Center. So certainly under his guidance, we are working for this project, and we look forward for this thing. I'll start with introducing my team first, and would like you also to introduce yourself so that we start the proceedings. Myself is Uday Shankar, project manager for geothermal project from ONGC Energy Center. Myself, Nawang Les, chairman CIA, and I'm coordinating this project. I am Absar. I was in geological survey of India. After that, I've been working in geothermal areas of Maharashtra and Nepal. Good evening, everybody. I am Ravi, Director General of ONGC Energy Center. I recently joined. Sorry to interrupt. It would be good if you will give in Hindi. No doubt. I love it. नमस्कार, मेरा नाम रवि है. मैं डायरेक्टर जनरल ONGC एनर्जी सेंटर में दिल्ली में कार्यरत हूँ, और मेरे साथ ही हमारा जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं. धन्यवाद. मैं सोनम सजूर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ले, मैं LSDC को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं डॉक्टर तंजीम, मैं सेक्रेटरी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता हूँ, और उन्होंने ये चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला हुआ है. बिकॉज हमें बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे मेल पे मेल कि प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा शेयर करें. सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट फॉर. नमस्कार, मेरा नाम कुंजिस डोलमा है. मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ जियोथर्मल एनर्जी पे, एंड करंटली मैं रेकिविक यूनिवर्सिटी आइसलैंड से अपना रिसर्च करती हूँ. The media side also would like to have introduction. My name is Simran Singh. I'm a reporter with the print. This is my colleague. प्रवीण जी. मैं नरेंद्र पाटिल हूँ. आई एम ए फ्रीलांस साइंस राइटर. जी, मेरा नाम स्तंभम दौर है, मैं DNA. मेरा नाम मुल्क संधू है, मैं न्यूज़ 18 हूँ. मेरा नाम जैनब संधू है, मैं JK 24/7 न्यूज़ की रिपोर्टर. मेरा नाम रिक्सिन मामू है, मैं JK 24/7 के साथ. रिक्सिन फ्रॉम स्टेट टाइम्स. मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं दादा दफ्तर की. मैं रमेश सत्ताल, इंडिया रेडियो और DD न्यूज़. From Birds Club. Yourself? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं SSB ऑफिस से हूँ. SSP office. CID. Yeah. So, how do we begin? Sir, would you like to suggest some format, or should I suggest one? You first speak. आप अपने तरफ से थोड़ा बता दीजिए, फिर if we have any question we'll ask. मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ. व्हाट इज द प्रोजेक्ट है क्या, मैं बताना चाहूँगा. उस पर DG साहब आज के स्टेटस पे आ जाएंगे. फिर वो ये जियोथर्मल प्रोजेक्ट जो है, हम
अर्थ के अंदर जो हीट एनर्जी है, गर्म ऊर्जा है, उसको हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। यह जो एनर्जी है हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। आपने रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर सोलर पीवी, हाइड्रो प्रोजेक्ट सुना होगा, जो कि ये सारे जितने दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म हैं, दे आर टाइम डिपेंडेंट, डेज डिपेंडेंट, सीजनल डिपेंडेंट। यही एक ऐसा एनर्जी है जो कि किसी भी सीजनलिटी इफेक्ट नहीं है, डे नाइट इफेक्ट है, 24/7 कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड पावर आपके पास अवेलेबल है। आपको सूरज की ओर देखने की जरूरत नहीं है, ये राइट आपके पैर के नीचे अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि जो धरती है इसका 99% जो अर्थ मास है वो मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस पे है। जैसे इमेजिन 99% जो अर्थ मास है वो मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस पे है। दैट इज़ व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी जो अवेलेबल है हमारे पास, और उसको हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। इसमें कंपेयर टू दूसरे सोलर पीवी, हाइडल जो रिन्यूएबल सोर्सेस है, उसके कंपैरिजन में इसका प्रोग्रेशन जो है सो काफ़ी स्लो पेस पे हुआ है। बट नाउ अभी वर्ल्ड वाइड इसमें काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कहीं और बाहर क्लाउडी सीजन हो जाए, दिन रात हो जाए, हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं 24/7। सो कंसिडरिंग दिस बैकग्राउंड एंड लद्दाख इज सडनली जो है सो ब्लेस्ड है कि इंडिया का बेस्ट जियोथर्मल रिसोर्सेस यहाँ अवेलेबल है आपके यहाँ पे। और यहाँ पे पिछले 50 सालों में काफ़ी काम हुआ है, बट हम इस प्रोजेक्ट को लॉजिकल कंक्लूजन की ओर नहीं ले जा पा सके हैं अभी तक, जो कि होना चाहिए था आज से कई सालों पहले। लद्दाख के 2 जनरेशन निकल गए जियोथर्मल का नाम सुनते सुनते, लेकिन जियोथर्मल उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने कोई 1 किलोवाट पावर नहीं बनाया जियोथर्मल पे। जियोथर्मल सिर्फ बिजली नहीं है, इतना याद रखें। और लद्दाख के केस में इसका इम्पोर्टेंस लोकल इन्वायरमेंटल फैक्टर के चलते, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन के चलते काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया में बहुत सारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में 350 जियोथर्मल स्प्रिंग को मैप किया है, लेकिन यहाँ पे अमंग ऑल दिस 350 दिस इज द बेस्ट वन यू हैव इन लद्दाख। इसी को हम लोग पूरा करने के लिए आए हैं। हमारे पास बहुत पहले ग्राउंड वर्क काफ़ी डेटा सब इकट्ठा किया गया था। GSI ने, NGRI ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, एटॉमिक मिनरल डिवीजन ने, नंबर ऑफ एजेंसी हैव वर्कड ऑन लद्दाख जियोथर्मल प्रोजेक्ट। बट ये प्रोजेक्ट जो आगे जा, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लॉजिकल कंक्लूजन की ओर जाना था, डीप ड्रिलिंग करनी थी, वो नहीं हुआ है। अप टू 384 मीटर की ड्रिलिंग पास्ट में हुई है। हमें नीचे और जाना पड़ेगा। 384 तक की फाइंडिंग बहुत अच्छी रही है। इट शुड हैव बीन टेकन लॉन्ग बैक अर्लियर, बट हम अब जो आए हैं काम करने 1000 मीटर तक हम ड्रिल करने के लिए आए हैं। एंड आफ्टर दैट आई रिक्वेस्ट आवर DG टू टेल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। एक स्पेसिफिक, आई एम टॉक्ड अबाउट जनरल थिंग, स्पेसिफिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट आवर DG वुड लाइक टू। अभी आपने जब सुना, हमारे कलीग ने जो बताया कि हम लोग बहुत सारे डाटा इकट्ठा किए, लेकिन ये डाटा क्या है, मैक्सिमम सरफेस डाटा है कि जो हमने ले सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें सरफेस में अवेलेबल है। लेकिन डाउन बिलो जा करके वहाँ के नीचे क्या लिथोलॉजी है, क्या फॉर्मेशन है, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, वो जो टेम्परेचर है, पानी है, वो हमको कैसे सरफेस पे लाएंगे, ये तभी होगा जब हम उस जगह तक जाए, उस जगह तक ड्रिल करें, और ड्रिल करने के बाद ही हम एक्चुअल हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारा जो ONGC में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो वहाँ भी ऐसा ही करते हैं। पहले हम डाटा इकट्ठा करते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए ड्रिलिंग करते हैं, और ड्रिलिंग करने के बाद ही हम जब उस डेप्थ पे जाते हैं, फिर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, सारा आइडिया हो जाता है, और फिर हम उसको एक प्रोसेस बनाते हैं कि कैसे उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे उसको आगे सरफेस तक ले जाएंगे, उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करेंगे, सो दैट इसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके उस एनर्जी को। क्योंकि ये जियोथर्मल एक बहुत ही क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है, हमारे पास अवेलेबल है। और लद्दाख जो कहते हैं, जो हमारे कलीग ने बताया कि ब्लेस्ड है कि उनका बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल जो जियोथर्मल का है वो यहाँ पे है, और वो पूगा, चुमाथांग और अभी दोंजोक और कुछ एरिया में है जहाँ पे ऐसा वो नेचुरल बना हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो नेचुरल है। तो नेचुरल जो है उसको हम लोग अगर प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करें तो हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुलेंगे, बहुत सारे एवेन्यूज आएंगे
जिसमें एक ये है पावर जनरेशन तो एक है ही है, इसके बाद हम बहुत सारे जहाँ हीटिंग पर्पस के लिए हम कट यूज़ कर सकते हैं, एक्वा फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पा के लिए यूज कर सकते हैं, जो सोलर जियो थर्मल ग्रीन हाउस के लिए इफेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजेस आर देयर जिसको हम लोग इस यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो मीडिया के फ्रेंड्स हैं दे शुड ऑल्सो हेल्प अस कि दैट सो दैट पीपल शुड, जो लोग हैं यहाँ के, दे आर अवेयर ऑफ इट कि हम जो करने जा रहे हैं उसका क्या यूज है, क्या इसका इफेक्ट होगा, क्या इसका हेल्प होगा। ये हमारे सब के लिए एक अच्छा चीज है जो हम करने जा रहे हैं। उसमें आप सब का सहयोग की आवश्यकता है। बिना आप सबके सहयोग के हम उसको हर लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। उस हर को पता होना चाहिए कि ये लद्दाख के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारे देश के लिए, लद्दाख के साथ साथ हमारे देश के लिए, जहाँ की हमारी ऊर्जा के रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। हम बहुत सारा, आज भी बहुत सारा चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, तेल गैस हम इंपोर्ट करते हैं, अभी भी हम पूरा नहीं कर पाए। ये होने से हम शायद कुछ सहयोग दे पाएंगे, और वो भी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि कार्बन जीरो इफेक्ट होना चाहिए। और ये ब्लेस्ड है, यहाँ कार्बन जीरो होगा, ये 100% इसमें कार्बन का यूज ही नहीं है। ये प्योर नेचुरल पानी है, उसको सिर्फ हम जो पानी, उसमें पानी में जो थर्मल एनर्जी है एब्जॉर्ब है, उसको हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो इसमें हम आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। हमको इसको हर जगह तक, लोगों तक सही मायने में, सही तरीके से पहुंचाने के लिए, कि लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, कुछ गलत है या ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को पता चले कि इस क्या है, सही है, और ये हम सब के लिए बेनिफिट के लिए, हम सबको लाभ देगा। ठीक है, थैंक यू। तो आपको अगर कोई न्यू ईयर कोई क्वेश्चन पूछा तो पूछिए। सर, ये जो आप ड्रिलिंग वगैरह कर रहे होगे तो लोकल लोगों का इश्यूज कंसर्न नहीं, इन्वायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आप लोगों ने इसको स्टडी किया? खासकर वाइल्ड लाइफ वहाँ बहुत होते हैं, तो उन सब के जो लोकल पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ, इस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट एनालिसिस जो करते हैं उसके लिए एक क्लॉज है हमारे उसमें कि 50 एकर्स और 5 मेगावाट के ऊपर है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने वाइल्ड लाइफ, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है। हमें एक काम करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसके लिए एक डिटेल प्रोसेस था। उसके थ्रू, परिवेश के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के थ्रू हमें एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है, जो कि यहाँ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, एलजी साहब हैं, स्टेट लेवल पे वाइल्ड लाइफ कमेटी है, एंड देन सेंट्रल लेवल पे कमेटी है। 5 स्टेज पे हमारा प्रपोजल एग्जामिन हुआ। वी हैव बीन ग्रिल्ड एट 5 stages. It took us 10 months to get that approval. It is not an easy process. There are, उसमें कुछ बाहर के एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं उस कमेटी में। इट इज़ नॉट कि केवल गवर्नमेंट के बाहर लोग होते हैं उस कमेटी में। हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट है 1 मेगावाट का, इसलिए हमने पूरे प्रोजेक्ट का अप्रूवल नहीं मांगा है। हमने कहा है कि हम ये पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 1 मेगावाट के लिए। You see us our performance, see the impact on the आपका environment पे, then you give us approval for the second phase. So we are not, we could have done that then. We could have, हम ये ले सकते थे कि हमारे phase 1, phase 2, phase 3 का अप्रूवल एक साथ दीजिए। We didn't go that. कि we know हम एक सेंसिटिव एरिया में काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोन है। सो इट इज़ नॉट, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, वाइल्ड लाइफ जो भी उसके नॉर्म्स हमने जो पूरे करने हैं बिल्कुल हम उसको फुलफिल करेंगे। हमारा रेगुलर वहाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन होगा, उनके लिखा हुआ है कि देयर ऑफिसर विल बी कमिंग टू दिस थिंग, रेगुलर विजिट आवर एरिया। सो एंड वी आर अ गवर्नमेंट बॉडी, वी आर नॉट अ प्राइवेट बॉडी, वी आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट, विजिलेंस, एवरीथिंग इज देयर। So since we are concerned, we are bounded by this thing, and this MOU we have signed with UT and LHDC, they are also coming on board with us. इसलिए आज यहाँ पे अब बैठे हुए हैं, वहाँ से भी MOU साइन करने के बाद हम ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं। इसलिए लोकल पॉपुलेशन को आप क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव हुए या नेगेटिव, जो भी हो, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा ना, जो आसपास पूगा वैली में रहते हैं उनको। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ इसका, जब ये अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है, अभी 1 मेगावाट का बनने वाला है। जब ये आएगा एनर्जी जनरेट, अभी तो हम लोग सिर्फ पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, ये पावर जनरेशन होगा, हम लोकल ग्रिड में देंगे। अभी 1 साल तक हमारा जो MOU में है कि हमको इससे देना है वो होगा। और इसमें जब मगर बड़े उसमें जाएंगे, बड़े स्केल में जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो एम्प्लॉयमेंट लोकल लोग ही उसमें इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे, कि लोकल की प्रायोरिटी होती है कि उसमें हमारा कोई भी होता है तो लोकल की पहली प्रायोरिटी होती है। तो वो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट के बिना हम काम आगे बढ़ा ही नहीं सकते, तो वो तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो वो तो हम लोकल लोग के बिना हम आगे नहीं चल सकते।
सर आपका कोई टाइम फ्रेम है जो 1 महीना आप बोला है पायलट प्रोजेक्ट करें, कब तक कंप्लीट? ये इसमें क्या होता है ना, ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। ड्रिलिंग ऐसा नहीं कि इसमें हम इमीडिएटली कह सकते हैं, जो हमने प्लान बनाया था कि इस सीजन में हम कर सकते हैं, जो हमारा अक्टूबर 15-20 तक हमने रखा था, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे उसको करने के लिए। तो हो सकता है कि अगर हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इस सीजन में ना कर सके, इसको हम मुझे अगले सीजन में करना पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें यहाँ पे। सर रिसेंटली ये जो आपका ड्रिलिंग का डिस्चार्ज जो आ रहा है किसी नदी में जा रहा करके, वो इशू सोशल मीडिया में भी आया? एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा सा मिस नॉर्मल है, प्रॉपरली किसी ने देखा नहीं है। मैं वो बताना चाहता हूँ कि देखिए, ड्रिलिंग हमारा 9 अगस्त के बाद ड्रिलिंग नहीं किया अभी तक। 9 अगस्त के बाद कोई ड्रिलिंग नहीं हुआ। जब कोई ड्रिलिंग ही नहीं हुआ तो डिस्चार्ज की बात कहाँ से आ गई? जो मैं वीडियो देखा है एंड सोशल मीडिया में जो वहाँ देख के डाला है, आई हैव मेट दोस पीपल, आई हैव सीन द वीडियो, आई हैव सीन द इमेजेस, यस, एंड दे वर देयर ऑन 16th। I'll reply. देखिए, हमने 4 अगस्त में यहाँ ड्रिलिंग चालू की। 9 अगस्त को हमने ड्रिलिंग हमारी रुक गई थी। 9 अगस्त को हम 40 मीटर ड्रिलिंग कर चुके थे। हमने वहाँ इनकाउंटर किया है हाई टेम्परेचर सैलो जियोथर्मल रिजर्वायर at 40 meters. At 40 meters. It started at 32 meter. It continued giving discharge till 32 मीटर पे शुरू हुआ एंड 40 मीटर तक चलता रहा। उसके बाद हमने ड्रिलिंग नहीं की है। 9 अगस्त के बाद हमने कोई ड्रिलिंग नहीं की साइट पे। तो 16th को जो दिख रहा था, I'll address that. So हमारा अपना सिस्टम है, हम उसको ड्रिलिंग करते हैं। ONGC देखिए, इंडिया में और 15 कंट्री अब्रॉड में काम करती है, सेम ड्रिलिंग रिग होता है ONGC का। जो ऑयल एंड गैस में जो ड्रिलिंग होती है, सेम इक्विपमेंट एंड सेम प्रोसेस यूज किया जाता है होल करने के लिए। ONGC ने 12,000 वेल्स इंडिया में पिछले 60 सालों में किए हुए हैं। ONGC इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, इट केयर्स फॉर इन्वायरमेंट। वी डोंट डू, आज का नहीं है ONGC, आप समझे इस चीज को। एक मिनट, I'll come to specific. So 9th के बाद हमने नहीं किया। 9th के बाद हम क्या कर रहे थे? Since we encountered a very high temperature shallow reservoir, we started cooling the reservoir first. The temperature was 130 degrees Celsius, 120 to 130 in that range. It is a very high temperature, encountering at 32 meter to 40 meter depth. After that, we started pumping cold water in the reservoir. हम उसको 60 to 70 तक कूल करके हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे, so that we can go deeper further. There are certain process involved. इसमें जो process होता है वो हम वो करना चाह रहे थे. Coming to specific incident of 16th that has come in the media. हमारे पास डॉक्टर स्टैंजिन है. We had a meeting. UT ने काफ़ी हाई लेवल पे मीटिंग बुलाई थी 16th वाले इंसिडेंट पे. And we have told, in that meeting we have told what happened on 16th. 16th what happened, 11 kV लाइन से हम पावर लेते थे, वहाँ पे पावर लेते थे और उस पावर को हम यूज कर रहे थे ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए। उस दिन 16 अगस्त को आप देखे होंगे, देख लीजिएगा डेटा, हेवी रेन था वहाँ पे, पूगा एरिया में हेवी रेनफॉल हुआ था। 11 kV लाइन ट्रिप हो गया। वी स्विच्ड ऑफ। उसके बाद हम अपना जेनसेट चालू करने लगे तो वहाँ पे जो वर्कर थे हेवी रेन के चलते उसमें 20 मिनट की टाइम लग गया। इन दोज 20 मिनट्स द कूलिंग ऑफ रिजर्वायर स्टॉप्ड। जो 120 डिग्री का पानी था उसको हम जो कूल कर रहे थे वो दैट प्रोसेस स्टॉप, क्योंकि पंप हमारा चला ही नहीं। वी हैड अ ब्लो आउट। ब्लो आउट मीनिंग व्हाट? वहाँ से जो नीचे रिजर्वायर में 120 डिग्री का पानी है बाहर आया। बाहर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पूगा एक हाइट पे है, नॉर्मल जगहों पे 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है, पूगा पे 84 डिग्री पे ही पानी बॉयल हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे अल्टीट्यूड पे है, प्रेशर कम है। सो पानी जब वो बाहर आता है 130 का, वो लिक्विड फॉर्म में होता है अंडर फॉर्मेशन में, क्योंकि अंडर प्रेशर पे होता है रिजर्वायर के अंदर, जब पानी होता है लिक्विड फॉर्म में आता है। बट जैसे ही वो वेल के बोर से होते हुए बाहर आता है, वो स्टीम में कन्वर्ट करना शुरू होता है। कुंजेस इज हियर, सी इज जियोथर्मल, सी हैज डन दिस थिंग। सो वाटर, जो प्रेशराइज वाटर एक बार वेल में होता है, तो वेल में आने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होता है एंड काफ़ी प्रेशराइज फॉर्म में निकलता है बाहर वो। दैट इज व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे। द कूलिंग स्टॉप्ड एंड ब्लो आउट हैज अकर्ड। आई एम नॉट फिनिश्ड। Sir, one thing. After all your explanation about what. No, I'm not finished. Let me finish.
So it was a freak incident. It was not a drilling failure, or we were not dumping drilling water into the nala. It was just a freak incident that happened over 20 minutes of time, and those particular minutes, the photograph and video that is circulating in the media has happened. That water was coming from the breccia formation. Dr. Absar is here. He will tell you the geology aspect of what the breccia is. Breccia is what is its coloration, and how, whether it is environmentally, whether it is benign, it affects the environment or not. He will be telling you. We have lined up our Iceland ISOR experts also. Their 2 experts are continuously from day one. They are sitting on the site 24/7 and they are guiding us, and they are constantly taking backup from ISOR Iceland. We have lined up ISOR Iceland also. They will be available on the VC. So if you have a question to them also, take the international opinion. I will tell you the ISOR background. ISOR is a 75 years old government of Iceland entity. They have provided geothermal know-how to more than 50 countries in the world, and they also train. They provide faculty to United Nations is running a geothermal university in Iceland. So most of the faculty are from ISOR. So this is the background we are having. We have got MOU with ISOR to provide the know-how for this project for next 5 years. So I was asking one thing. You have collected data before going for the pilot project. Right. And in your statement, it is coming out like this: you are not able to control the uncontrollable, whatever the 20 minutes time. Power failure. No. See. That is what I am saying. So there was a failure of There power are supply. things which are not known to people, and which you would have anticipated and you would have acted upon. That was what I wanted to say. Yes, I want to add to that. See, basically, at least technologists tell us that there is a solution to this. Yeah. And solution is to have a BOP, blowout preventer. So, Okay. clearly you guys don't have that. And दूसरा मैंने पढ़ा है कि you need to have a re-injection well ready before the drilling begins. Whether it is exploratory or not, is not important. Accident हो सकता है. जैसे आप बोल रहे हो accident था. Incident. I never said accident. I said freak incident. Yes, freak incidents can When the trip, because 11 kV supply line tripped. Fine. So there has to be a preparedness for सर that. आप तो बाहर से आए हैं, आप जो ने काफ़ी जैसे बोला है काफ़ी कंट्रीज में किया है, तो फ्लोरा फोना लद्दाख का ट्रेन बिल्कुल अलग है, उसको बिल्कुल सोच समझ के ही आपने काम किया होगा। तो उसी बारे में मैम से हम जानना चाहेंगे, वो यहाँ के लोकल है, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि काफ़ी मीडिया में ये भी आया था यहाँ के इनहैबिटेंट्स जो है खतरे में हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के। तो मैम आप लोकल है, तो आप इस चीज़ पे क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ जियोथर्मल प्रोजेक्ट पहले का नहीं होता है। कुछ भी अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कहीं पे भी, तो कहीं पे भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, इट इज़ मैंडेटरी, ज़रूरी हो जाता है एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना उस जगह का। किसी भी जगह में आप कुछ भी करते हो, होता क्या है एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में कि जहाँ भी किसी भी जगह में आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, चाहे आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हो, चाहे आप पावर प्लांट का करते हो, या चाहे ड्रिलिंग करते हो, उस एरिया में ऑलरेडी कुछ सेटलमेंट होता है, ऑलरेडी कुछ फ्लोरा फोना होता है वहाँ पे अवेलेबल। तो आपको ये देखना होता है प्रायर टू स्टार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये देखना होता है कि उस प्रोजेक्ट को करने से इन सारे एनवायरनमेंट पे हो गया, आपका सोशल लाइफ पे हो गया, वहाँ के जो लोग वहाँ रहते हैं या जो लोग वहाँ पे वो रिसोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड सोशल एंड इन सब पे और इकोनॉमिक भी देखते हैं बेसिकली कि इनकम जनरेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो दिस रिपोर्ट ESIA रिपोर्ट करना हर प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो इसमें जैसे हमारे DG साहब एंड प्रोजेक्ट मैनेजर उदय शंकर सर ने पहले बताया, जब MOU साइन होता है तो उसमें सारा कुछ मेंशन होता है कि यू हैव टू डू अ EIA, आपका चाहे आप सोलर प्रोजेक्ट्स करते हो या आप जियोथर्मल करते हो, एंड देन ओनली आपको गो अहेड मिलता है, राइट। अब इस केस में क्या है, लद्दाख के केस में कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले, चाहे वो चंगतम में करते हो आप, चाहे सिटी में करते हो, खरदोंगला पे करते हो, EIA करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है,
हम जो है एकोलॉजिकली बोलिए या फिर हम थर्ड पोल में रह रहे हैं, लद्दाख इज इन द थर्ड पोल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक क्रिटिकल बहुत ही सेंसिटिव एरिया है एनवायरमेंटली, एंड अगर आप कुछ भी यहाँ पे एनवायरमेंटली कुछ भी आप यहाँ पे चेंजेस लाते हो, इम्बैलेंस क्रिएट करते हो, तो वो कंट्री के नॉट ओनली कंट्री बट साउथ ईस्ट एशिया हो गया, आपका होल थर्ड पोल में अफेक्ट करता है। ग्लेशियर्स हो गया, आपके रिवर सिस्टम्स हो गया, वाटर सिस्टम्स हो गया, फ्लोरा फौना हो गया, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट करता है। तो दिस इज द रीज़न कि ESIA करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों में। अब स्पेसिफिकली जियोथर्मल के केस में क्या होता है, कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्स पावर प्लांट, चाहे आपका सोलर हो गया, थर्मल हो गया या हाइड्रो हो गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है जियोथर्मल का सबसे मिनिमम होता है, क्योंकि इसका लैंड यूसेज जो है पर मेगावाट प्रोडक्शन कंपेयर टू अदर सोलर हो गया या हाइड्रो हो गया, इट इज़ वेरी लेस, ठीक है, बहुत कम होता है इसका। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट कम होता है, बट देन इट डजंट मीन कि आप EIA करना उसमें छोड़ दो, नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि एक चीज़ और है, जैसे हमारा अभी हम पुगा की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे बर्डिंग ग्राउंड्स है, राइट। सेकेंडली वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स है जो काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से हमारे ट्रेडिशनल जो आमचीज होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं फॉर द पेशेंट्स के ट्रीटमेंट्स के लिए, आर्थराइटिस हो गया, हेडेक्स हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है कि कहीं हम ड्रिलिंग करते हैं तो इनकी वजह से इन सब चीज़ों पे इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो माइक्रोबायल एक्जिस्टेंस है, जो छोटे छोटे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ये जो है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। तो ये रिसर्च के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे कुछ काफ़ी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन स्पेस रिसर्च रिलेटेड, एस्ट्रोबायोलॉजी के रिलेटेड, उन्होंने काफ़ी स्टडीज़ किया है और अभी रिसर्च कर भी रहे हैं, और उन्होंने बोला कि दीज आर वेरी क्रिटिकल एरियाज कि हमें देखना है लिविंग जो हमारा जो लाइफ एवोल्यूशन है अर्थ पे कैसे हुआ है, उसके स्टडी करने के लिए। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स एंड देन एज इट इज़ प्रोजेक्ट करने से, ये जियोथर्मल प्रोजेक्ट करने से इन्वायरमेंट पे उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट द थिंग इज यस, in what manner are you doing it, whether are you doing certain following certain protocols or not, कुछ standards को आप follow करते हो कि नहीं करते हो। हाँ, जैसे हमने देखा कुछ तो 10-15 दिन पहले कि डिस्चार्ज सीधे नाले में जा रहा है, दैट इज आई से एज अ जियोथर्मल एक्सपर्ट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है। So this shouldn't be happening, and we would not expect कि a very high organization like ONGC should take such chances. So we would expect कि ONGC will definitely cater to all these ये सारा environmental norms है। I hope this is in their now in the back of their mind, तो ये लोग ज़्यादा careful रहेंगे। I'll address this question. Punjas has rightly said, EIA study चाहिए होता है। कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी करना होता है। इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी स्टडी करना होता है। इट इज़ रिक्वायरमेंट, इट इज़ लॉ ऑफ द लैंड एंड वी नीड टू फॉलो दैट। बट द लॉ ऑल्सो सेज that when you are supposed to do the biodiversity impact in the wildlife sanctuary and when you are supposed to do the EIA study for environmental impact. Wildlife, because you are working in the biodiversity, wildlife sanctuary, so Wildlife Act says, which we have applied for this thing, in case you are acquiring, you want a land more than 50 hectares of the land, and please repeat, 50 hectares of the land in the wildlife sanctuary, you have to go for the biodiversity impact assessment report. We have only asked for 3 hectares of land for this pilot project. It is not applicable to us for this project. It is similarly, EIA is not applicable to this project because we are putting up only 1 megawatt. Ministry of Environment would not have given, it is only one pilot project. Ministry of Environment have not given us approval for go ahead without these mandatory requirement, because once you fill in the form, they ask the same questions. What is the land requirement? The moment you say 50 hectares, it will say go for biodiversity study. Then
go for biodiversity study, submit the report online, then only they will go for the first stage clearance. I told you in the beginning, we have to go for 5 stages of clearance. So in the first step, it will stop you. Similarly, EIA, if it is relevant to you, the system, Ministry of Environment and Forest website will not allow you to proceed further unless you fulfill this biodiversity impact assessment or EIA study if it is relevant to your project. It was not, both of these things are not relevant to this project because of the size of the project. Oh, but this freak incident, your wire is skirting that issue. Was there no prevention possible? Were there no preparedness possible? You are not answering that. Please repeat your question. No, जो freak incident हुआ, because of which आपका discharge पूरा नाला में गया. See, ये सब कानून बोलना या एक clearance की जरूरत नहीं है and all that. See, मुद्दा ये अलग है. Citizens could have a problem with that law itself. Citizens will take up that issue at a different level. अभी हमको आपने सिर्फ समझाना है कि वो जो डिस्चार्ज पूगा नाला में जा रहा है उसको रोका नहीं जा सकता था. जा रहा देखिए गया था एक पर्टिकुलर मिनट्स के लिए गया था बस. 20 minutes or 1 second is not convincing to me. मुझे मालूम नहीं है उसमें क्या है. आपको भी मालूम नहीं है बिकॉज आपको मुझे नहीं. सर आप पहले शुरुआत किया कि यू वांट द पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजंस एंड यू एक्सपेक्ट द मीडिया टू फैसिलिटेट दिस. None of your information is on the social media. Nowhere is it in public domain. How can me as a media person facilitate a smooth execution of this project? See, what has happened over there? None of them. आप बोल रहे हैं आपके पास इंफॉर्मेशन है टेक्निकल. मुझे पहले बताना चाहिए before I get anxious about it. You cannot put it in the nalla and later on say कि उसमें क्या है. कुछ नहीं है. You have to give a proof of that. Yeah. Have you collected the sample? Do you have a test of that? He is a geologist by profession, so he will tell you what has come along with the nala, along with the water, the discharge, what it contains. No, collected. Yes. We have said it should have been in public domain. So not he will address everything. What measures we have taken? See, I'd like to tell you. We started drilling on the 4th this thing. Immediately we have called GSI scientists. They have been continuously collecting sample from our project site. This is our project site, 2 kilometer upstream and 2 kilometer downstream up to Samudra village. All the water sample from the nala before project site and after project site has been collected. We will share the report with you. No issue, no issue. This is before 16th incident, I'm telling you. Before 16th, we have been doing this study. Whether, in case the discharge goes now, how does it affect this nala? Now, I would like to share with you one more information. One more information which may not be available, जो कि public domain में नहीं होगा. GSI इस जगह पे 1973 से काम कर रहा है, 1973. उन्होंने नाला के origin से लेकर के सुमदो village तक, they have mapped, there are 83 how much? 83 geothermal springs are continuously discharging geothermal water उस नाला में डिस्चार्ज कर रहे हैं. अगर आप उसके पानी को कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, आई अगेन शेयर विथ यू, जो पूगा नाला ओरिजिन है, जो पहाड़ से जहाँ से माउथ है उस नाला का, वहाँ पे टेम्परेचर आपको राउंड द ईयर 9 डिग्री सेल्सियस मिलेगा. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल फाइंड द वाटर टेम्परेचर गोज अप. मेरे ड्रिलिंग मत छोड़ दीजिए, आप कभी जाइए, मेरी ड्रिलिंग हमारे तो बंद है ड्रिलिंग, समझे ना. कभी भी जाइए आपका वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मिलेगा. यहाँ से ये 9 डिग्री विल बिकम 23 डिग्री हेयर. Why? Because of 83 geothermal springs continue and they have all the coordinates. आप मांगेंगे GSI से 83 springs के coordinates मिल जाएंगे GSI के रिपोर्ट पे कि कहाँ पे है वो अवेलेबल. Once upon a time, Dr. Absar tells me कि geothermal spring बाहर भी निकलता था, 1 फीट 2 फीट बाहर भी दिखता था, visible था. But if you walk, suddenly you will find cold water and suddenly you will find a hot water. So कंटिन्यूअसली जियोथर्मल वाटर इज बीइंग एडेड इन द नाला. हम कोई नया पानी उसमें नहीं डाल रहे हैं. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, हम कोई जो पानी नेचर ने नाला में डाल रहा है वही पानी हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो वी आर नॉट पॉल्यूटिंग नाला. एंड टीडीएस shows that there is no. नहीं सर, इस बार तो उबला हुआ
नहीं, पानी तो गर्म है ही है ना, पानी तो गर्म है ही है पहले से वही ही। गर्म पानी वहां से भी निकल रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर 9 डिग्री से लेकर के पूरे नाले का टेम्परेचर आप जाएंगे मेजर करके। हम जो पानी निकाल रहे हैं, हमारे पास 5 लेवल के उसमें कैस्केडेड पिट है, उसमें पानी स्टोर होता है, एक भरता है, फिर दूसरे में जाता है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। पांचवें के बाद हम पानी को नाले पर डालते हैं। एंड वाटर का कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो है और नाले का, हम उसकी दोनों की टेस्ट रिपोर्ट आपको शेयर कर सकते हैं कि देखिए वी आर कंसर्न, हम एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये सब स्टेप्स पहले लिए हैं। सर, एक री-इंजेक्शन वेल का होना कितना नो, नहीं, अगेन यू आर नॉट मिसइन्फॉर्म्ड। नहीं, हमने एक सेकंड मुझे फिनिश करने दीजिए। हमने कई आर्टिकल्स में पढ़ा है, पाटिल जी ने भी अपने आर्टिकल में लिखा है कि वहां पे री-इंजेक्शन वेल का होना बहुत जरूरी था। नो I'll tell you. Re-injection. Listen. Let me tell you why. When the re-injection well is required, it is never required during drilling stage. Once you start producing the water, हम कैसे उसे एक बार हम ड्रिल कर लेंगे, पानी बाहर आएगा, ड्रिलिंग खत्म होने के बाद पानी बाहर आएगा, उस पानी को हम एक सेपरेटर में डालते हैं, सेपरेटर में हम वाटर और स्टीम को अलग करते हैं। स्टीम गोज टू स्टीम टर्बाइन फॉर पावर जनरेशन। ये जो पानी जो बचता है, इट गोज टू अ री इंजेक्शन वेल। हम जानते हैं कि अगर हम री इंजेक्शन नहीं करेंगे ना, रिजर्वायर सूख जाएगा। पानी को हम री इंजेक्शन नहीं करेंगे, अर्थ एक्ट्स एज ए बॉयलर, जैसे एक मिनट, लेट मी फिनिश द प्रोसेस। सेम क्वेश्चन, अभी क्यों जरूरत नहीं है री इंजेक्शन? इट इज नेवर, इट इज ओनली जब आप रेगुलर प्रोडक्शन करते हैं पानी का, जब ड्रिलिंग साइकिल से हट करके प्रोडक्शन साइकिल पर जाते हैं, तो उस स्टेज पे आप पानी को कंजर्व करते हैं। एक्चुअली अभी आप तो कंफ्यूज क्यों हो रहा है? बोल रहे हो कि अभी जो रिसर्च फेज में निकलता है, नॉट रिसर्च फेज, One thing, sir, I think I may add to that. हाँ, 1 megawatt doesn't require the bore or the entire project. What do you mean to say? You are right now testing. नो अभी टेस्टिंग नहीं, अभी तो ड्रिलिंग फेज में जा रहा है, अभी तो पहला ही वेल ड्रिल कर रहे हैं। सही, पहला ही वेल ड्रिल कर रहे हैं अभी हम लोग। You are drilling. हाँ। Drilling point you don't require that well. राइट, नॉट रिक्वायर्ड। Or for entire 1 megawatt pilot project. once we start producing electricity, the day one, from day one you will find there will be re-injection well. Let me tell you. That is for 1 megawatt. Even for That is for, no, I will say it is power generation. So once we start power, now we are just drilling the well from where we can produce the water. So once we reach the production stage, now we are in drilling stage. So he is right, re-injection well is required. I agree with him, but in the production stage, not in the drilling stage. So it is quite a procedure. तो इसमें छानबीन जरूर किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स क्लब की ओर से भी काफी कंप्लेंट्स जा रहे थे सर, तो आपका क्या कहना है इस पूरे प्रोसेस में? ये आज आप एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, ठीक है? हमारे पास तो एक्सपर्टीज है नहीं। हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि जो ONGC के साथ जो ट्रिपल एग्रीमेंट है, LHDC, UT एडमिनिस्ट्रेशन और ONGC के बीच में, उस एग्रीमेंट्स में बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस हैं, वो हम डेफिनेटली रिव्यू करेंगे कि कहाँ पे वायलेट हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, तो उसको हम थोरोली हम चेक करके बताएंगे आपको। आज फिलहाल आप लोग जो एक्सपर्ट्स आए हैं उनसे पूछिए, क्योंकि हाँ, मैं ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा प्लीज। इट इज एड्रेस टू ऑल द एक्सपर्ट्स हियर। आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन। ये जो फ्रीक इंसिडेंट है, इसकी तैयारी क्यों नहीं किया गया? इज द टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर दैट इन द नेचर ऑफ BOP? वो आपके पास क्यों नहीं था? क्वेश्चन नंबर 2, री इंजेक्शन वेल आप लोग बता रहे हो कि प्रोडक्शन स्टेज में जरूरी है। रिसर्च फेज में जो निकलता है बाहर जियोथर्मल फ्लूइड, यू आर सपोज टू स्टिल कंटेन इट, या आप उसके अंदर डालो या ना डालो, यू आर सपोज टू कंटेन इट, यू कैन नॉट रिलीज इट इनटू द एनवायरनमेंट। You please answer these 2 questions, and all the experts need to answer. I'll answer. See, don't say BOP is mandatory. There are other technology available. There are other technology available also. But do you have it in place, sir? Yeah, we have it in place. So why did this freak incident allow you to release the water? 20 seconds, 20 minutes, 1 hour, 1 second is not a justification, sir. Again, had BOP, okay, I'll tell you the other way around. Had BOP be in place, suppose day one BOP would have been in place, still this freak incident would have had the same effect.
Let me tell you very clearly. Is that the reason you didn't have the BOP? No, that is not the reason. Then why didn't you have the BOP? Because we had other technology. So why did it Because not the work? power failed. And how is Because it? the power failed. Because the electricity supply failed. See, I'm telling you how. First, we have to understand that हम लोग को समझना पड़ेगा ड्रिलिंग कैसे करते हैं. हम लोग एक्सपर्ट है, हमारा ONGC एक्सपर्ट है ड्रिलिंग कैसे किया जाता है. हम लोग शुरू से करते हैं, कैसे किया जाता है हमें पता है. शुरुआत में कहाँ पे BOP लगाया जाता है, किस स्टेज में BOP आता है, वो सब एक बना हुआ एक प्रोसीजर है कि क्या कहाँ BOP लगाया जाता है. तो जो शुरुआत का जो फेज करते हैं, जो पहला जो इनिशियल फेज में करते हैं, वहां पे BOP नहीं लगाया जाता है. ये आप कहीं भी पता करिएगा किसी में शुरुआत फेज में उसका एक बना हुआ है कि जब इस डेप्थ से आगे बढ़ेंगे तो आपको BOP की जरूरत है. हमारे पास BOP साइट पे अभी भी अवेलेबल है. हमारा जो आज भी जो ये इंसिडेंस हो गया बिकॉज ये नहीं होता अगर वो पावर फेलियर नहीं होता. और दूसरा ये शैलो रिजर्वायर जो था इसमें जो इतना जो वॉल्यूम आ गया और हम जो कूल कर रहे थे वहां पे ये हो गया जो आप कह सकते हैं कि गैप आ गया जिसके कारण इंसिडेंस हुआ. अदरवाइज हमारा क्लियर कट है. हमारा जो बनाते हैं हम लोग बोलते हैं ड्रिलिंग वेल ऑन पेपर्स बनाते हैं. पहले से हम वेल प्लान बनाते हैं कि हमें कहाँ कितने डेप्थ को कौन से केसिंग के ले जाना है. अलग अलग साइज पाइप साइज होते हैं. इस पाइप साइज को इस लेवल तक ले जाना है, इस पाइप साइज को इस लेवल तक ले जाना है, इस पाइप साइज को इस लेवल तक ले जाना है. ये हम पूरा जब हजारों वेल हमने किया है ONGC में तो उस हिसाब से प्लान किया होता है. इस स्टेज में यहाँ पे जो हमारा जो गैप रह गया एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था जो 130 जो हम कूल कर रहे थे पावर फेलियर हो गया और हम पंप नहीं कर पाए. Sir, it was a very unique ये इस यूनिक because this has happened. Otherwise we cannot say we don't have technology in place so that we cannot. So when we are going for the next phase, next जो हम करने जा रहे हैं वहाँ we are taking care of it. So explain how technologically and physically how will you prevent something like this happening? Yeah, for that what we have to redesign the well. We have to redesign the well. We know that okay, this has happened at 40 meter of depth from ground level. It has happened. So then we have to put the casing before that. The casing is drill pipe, before that, and then we have to fix the BOP at the top, and then we go with the new smaller size of borehole down below. So we have हमारा plan है. 1970 से आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है. हाँ जी. So couldn't you have been prepared for this? No, that is true. No, I'll ask like a layman. नहीं, you are right. Patil ji, what you are telling? My concern is very very genuine. मैं बोलूँगा कि एक्सीडेंट के नाम पे, फ्रीक इंसिडेंट के नाम पे जो जिम्मेदार है प्रोजेक्ट चलाने के लिए हाथ उठा नहीं सकता. नहीं. Because you are responsible people. Yes. Simple as that. I am Correct. a layman. I will say आप जो भी मुझे बताइए कारण की वजह से एक 5 सेकंड के लिए गया 20 मिनट के लिए गया सिंस 70s फिर कर क्या रहे हैं हम लोग. क्या डेटा एक्यूमुलेट किया, क्या टेक्नोलॉजी एक्यूमुलेट किया that you are not prepared for even this. You answer. Yeah, geologist, give a geologist answer. What discharge? What We went into never the had discharge? seen this temperature. It was unprecedented. And these two blows have given me a lot of courage. This is a fundamentally very good prospect. Because the strength and the nature of the blows were such. Our Iceland expert, he said, in 20 years of my career, this is what I am telling you what the unusual situation was. He says, in 20 years of my career, I have never seen such a high temperature occurring at such a temperature. Yeah, but how is it then categorized as low enthalpy, medium enthalpy in all research? No, even GSI. These are textbook names, I don't bother about No, these. even Geological Survey of India has categorized. See, Yeah. 34 wells have been drilled by GSI. We can share the data of all 34 wells with you. What temperature they encountered never at expected one this. second. Never. What temperature they encountered at every meter that has been mapped. This temperature happens to be the highest among 34 wells. Let me tell you, 34 wells that built in a 5 square kilometer area. Again, those data are in public domain. It's not, they are in public domain. Sir, to conclude, what could be the best solution? In a शॉर्ट बताइए. मैं बताता हूँ. लद्दाख की जो एनवायरनमेंट है आपको सभी को पता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है. Yes. Because यहाँ हैबिटेट्स बहुत है, यहाँ यूनिक बहुत है. तो आप इसके सोल्यूशन कहिए क्योंकि यहाँ पे बहस करना ये नहीं हो रहा है, वहाँ से ये हो रहा है. तो दिस इज क्वाइट अ प्रोसीजर जो आम लोगों को नहीं समझ में आएगा. इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो वी आर बीइंग नेशनल ऑयल कंपनी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल. हमने अभी जो नेक्स्ट हमारा जो बिकॉज ये वेल में तो अभी हमारा काम नहीं हो रहा है बिकॉज इज क्लोज नाउ. हमारे दूसरे वेल के लिए हमने पूरा जो भी
केयर लेना, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमने लिया है। और हम जो हमारा जो ड्रिलिंग करने जा रहे हैं, जो हमारा प्लान बना रहे हैं, उसमें हमने पहले से बताया ना कि हमने एक छोटा डेप्थ में पहले कर सकते हैं कि नहीं, वो सारा डिस्कशन हमारा चल रहा है। ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट्स जो है, हमारे जो ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ डिस्कशन चल रहा है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, कि सो दैट ये इंसिडेंट्स नहीं हो। और जैसा इन्होंने पाटिल जी बोला कि बीओपी होना चाहिए, या पहले टेक्नोलॉजी लगा था, जो हमने टेक्नोलॉजी लगाया था जिसको डाइवर्टर बोलते हैं, वो सब लगाया था, लेकिन अभी क्या, अभी बीओपी लगाना है उसके, सो दैट ये इंसिडेंट्स ना हो सके, तो वो हम केयर कर ले। और ये हम लोग पूरा का पूरा जो वेल प्लान है हमारा, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट एज वेल, बिकॉज हम लोग का ये हमारा मिशन है कि हमारा जो भी काम करें एक अच्छे एनवायरमेंट के साथ करें, किसी भी फ्लोरा फौना को हम डिस्टर्ब ना करें। और सो एनीथिंग वट एवर इज रिक्वायर्ड। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग कहते हैं कि हमने केमिकल उसमें डाल दिया, ऐसा कर, कोई केमिकल नहीं यूज होता। अगर आप किसी को चाहिए तो यू कम टू आवर साइट, यू सी दिस व्हाट वी आर डूइंग फॉर प्रिपेयरिंग मड एंड ऑल, जो जिससे हम ड्रिल करते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन पानी का हमको क्या होता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज जब जैसे सब ड्रिल करेंगे, जितना आपको डेप्थ नीचे जाएंगे उससे फ्लूइड आना शुरू करता है। इसको फ्लूइड को रोकने के लिए हमको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाना है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आप कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ केमिकल जो आप हम लोग ये बोलते हैं बेराइट और बेंटोनाइट डालते हैं। बेराइट बेंटोनाइट क्या, ये मिट्टी है जो कडप्पा और वहां से आंध्र प्रदेश से आता है, वो उसके डाल करके उससे क्या उसका वेट बढ़ा देते हैं, सो दैट जो फ्लूइड आने वाला है वो रोकता है। तो ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर पूरे दुनिया में काम होता है। पूरे दुनिया में जब ड्रिलिंग या कैसा कोई भी एक्टिविटी होता है उसमें यही करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे। और अभी बीओपी लग जाने से हमारा ये फायदा होता है, जो जैसे इन्होंने बताया कि वो जो आया था, जो कि इंसिडेंस हो गया, उसको हम अवॉइड करेंगे। और मुझे बहुत श्योर है, हम 100% श्योर है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, बिकॉज हम सारे प्रिकॉशंस लेके करेंगे कि दो डेट हमारा जो भी कोई कंसर्न है हमारे लोगों को या हमारे मीडिया को या जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट को कोई कंसर्न है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया तो मुश्किल होगा, डेफिनेटली वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। We would like to put up a power plant at Puga following all norms and standard practices, because if we don't put it here, we will not be able to put it anywhere. But say you're not inducing. No, we are telling we will follow. I have a question for you also. Like for example, they keep telling me theoretically, आप टेक्स्ट बुक बोल रहे हो, टेक्स्ट बुक की जैसे ही बोल रहे हो कि एक री-इंजेक्शन वेल is not necessary till protection. Let him just tell it. I would like to know from you if I would like to know from Princess. He's asking you. He's asking her only. Could this freak incident have been controlled? See, the thing with, let me give a brief about, the drilling and the misconception between oil drilling and the geothermal drilling. This is a very proud project for all of India actually, because Puga is the best potential site for geothermal energy, and we shouldn't screw it up actually, right? So, and ONGC doing this is because it's a very reputed company in terms of oil and energy, right? We really expect some high standards in terms of environmental protection and in terms of safety, in terms of employment generation, in terms of gender equality, right? Now, coming back, I have certain I don't know, because all these things are going on. So I have these, what you call, reservation that why this could be happening. First thing is we fail to understand. It's not only in India, it's globally. Globally, companies think that oil and gas exploration and geothermal exploration are same thing, and that anyone can do that, right? There is a slight difference, and this is the reason why you need geothermal drilling experts, right? So. I know that ONGC has hired international geothermal drilling experts, right? So the thing is whether those experts were there at the site or not while drilling, right? And if they were there, were these people following the rules and whatever instructions those drilling experts were giving? That is the thing. This incident could have occurred maybe because they were not following what those experts were telling them. Yeah, this is the tweak where you need to understand that, okay, you might be the biggest oil and gas production company in the globe, in India, but then geothermal is really new to India, and we really, I'm telling it again and again, we really shouldn't screw up this project, And we have high hopes from ONGC. Like they said, they have already killed this well. By killing the well, it means that you have stopped producing from this well, right? And that you are moving on to another well, another production. So maybe we can expect that in the next
production well, in the next exploratory well that they'll be doing, like DG sir already explained, I hope that they'll take all these necessary precautions into mind and that they consider what the experts are saying and not follow their own, experiences, because geothermal is really new to India and this will be one of the projects that could be followed in rest of India. So this has to be an example and not a full stop to a geothermal energy project. See, Right. I like to say 2 geothermal experts, 1 geologist and 1 drilling engineer for Iceland. They are 24/7 on the site. They are not leaving a site for even an hour. So, and it is being done, I mind it, ISO is with us for last 2 years planning this drilling. We have signed the MOU on 5th of February 2020 with ISO. And we had an EOI, detailed exercise, expression of interest for drilling contractor selection. They were with us, ISO was with us. After selection, the drilling once they started, there are 2 experts camping on site. Today also he is there, though there is no drilling going on. And I think the good thing would have been, like, if you have had those experts here, maybe they would have be in a better position to answer. आप लोगों का questions जो भी है, they are more like expertise, so they could be in a better position to answer these questions. I think you are not there. I have already lined up ISO Iceland. They are right now available to receive. Please address the question to them directly. Yeah, that would be good. Please, I'll Mr. Dadi, the project manager. सब क्लियर हो जाएगा, you like ONGC का जो भी आप लोगों के खिलाफ वो है या कुछ भी है. We know. कि आप लोग फेल हो गए एग्जाम करने में. No. You cannot say failure. This happened. No, it's not a failure. I'm saying अगर यहाँ पे ड्रिलिंग एक्सपर्ट होता, आपके क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर देते. We just closed the well. You closed it. What has happened? So So will it has you not produce used. it from that power well again? Will you be able to go back and See, start it is a 5 square kilometer area. It is not the 2 wells that will be drilled here. There will be more than 10 to 20 wells will be drilled over 10 years of time, next 10 years of time. And sir, like, I don't know, I am not an expert, but जैसे आप So believe us, no? Believe a government entity. 5 volts per Sir, day, thank you so much. I can just आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम यही उम्मीद करेंगे कि कोई लद्दाख के जो रहने वाले मायूस ना हो इस जियोथर्मल जो प्रोजेक्ट है आपका सफल रहे. Thank you very much. ये हम That is certainly a very positive note you are giving us and very hopeful. I'm grateful. मैं बहुत certainly try to fulfill from our side. मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतना अच्छा शब्द के साथ अपना कंक्लूड किया. बिकॉज सी मैं बता रहा हूँ, लोग कंफ्यूजन हो जाता है, लोग आप प्रॉपर समझते नहीं है, लोग जानते नहीं है और कमेंट करते हैं, तो क्या होता है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा. क्यों समझ क्या होता है, अलग मीडिया में थोड़ा सा समझ जाता है, लोग कहते हैं ये ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे. हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं. जैसे हाँ, मैं एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ. हमारा ये है सकता अगले बार से हम लोग जो है ना, जैसे उन्होंने बताया कि मीडिया में कुछ इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए. अगली बार साइट पे आइए.